नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 25 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहां प्रकसा सर्वस्या योगा मया समावृता मूढोऽयं न विजानति लोको मम अजम् अव्ययम्. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my eternal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. सो भगवान बोल रहे कि वो कभी भी जो अज्ञान लोग हैं, जो बेवकूफ़ है, उनके हृदय में मैनिफेस्ट, उनके लाइफ में वो उस एक्सपीरियंस को नहीं। हालांकि फिर मैं मानूंगी कि मैं शायद भगवान के ब्लेसिंग्स में हूँ, मैं खुद भी उनको ना समझ के भी मैंने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि उनके लिए वो कभी भी उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, उनको वो फल नहीं देते हैं या उनको फल नहीं मिलता है, भगवान को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इट मे बी आर्ग्यू दैट सिंस कृष्णा वॉज विजिबल टू एवरीवन व्हेन ही वॉज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, देन हाउ कैन इट बी सेड दैट ही इज नॉट मैनिफेस्ट टू एवरीवन? तो कृष्ण को तो सबने देखा, तो कैसे कृष्ण मैनिफेस्ट नहीं हुए, कैसे कृष्ण को किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया? But actually he was not manifest to everyone. When Krishna was present, there were only a few people who could understand him to be Supreme Personality of Godhead. In the assembly of Kurus, when Shishupala spoke against Krishna's being elected president of the assembly, Bhishma supported him and proclaimed him to be the Supreme God. Similarly, the Pandavas and a few others knew that he was the Supreme, but not everyone. He was not revealed to the non-devotees and the common man. Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna says that, for his pure devotees, all men consider him to be like themselves. He was manifest only to his devotees as the reservoir of all pleasure, but to others, to unintelligent non-devotees, he was covered by his eternal potency. In the prayers of Kunti in the Srimad Bhagavatam, it is said that Lord is covered by the curtain of Yoga Maya, and thus ordinary people cannot understand him. His भगवान खुद को माया के जैसे रखते हैं, उनकी ट्रू शक्तियों को सबको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। दिस योग माया कर्टन इज ऑल्सो कन्फर्म्ड इन द ईशोपनिषद मंत्र 15, इन विच द डिवोटी प्रेज हिरण्यमयेण पत्रेण सत्यास्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुस्त्यान् अपवृणु सत्याधर्मया दृष्टया. O my Lord, you are the maintainer of the entire universe, and devotional service to you is the highest religious principle. Therefore, I pray that you will also maintain me. Your transcendental form is covered by the Yoga Maya. The Brahma Jyoti is the covering of the eternal potency. May you kindly remove this glowing effulgence that impedes my seeing your Satchidananda Vigraha, your eternal form of bliss and knowledge. The Supreme Personality of Godhead in his transcendental form of bliss and knowledge is covered by the eternal potency of Brahma Jyoti. ब्रह्म ज्योति से वो खुद को माया जैसा बना करके रखते हैं और उनके ट्रू सेल्फ, उनकी जो रूप है, उसको सब कोई नहीं देख पाते. एंड द लेस इंटेलिजेंट impersonalists cannot see the supreme on this account. ठीक है. Also in the Srimad Bhagavatam 10.14.7, there is the prayer by Brahma: O Supreme Personality of Godhead, O Super Soul, O Master of all mystery, who can calculate your potency and pastimes in this world? You are always expanding your eternal potency, and therefore no one can understand you. Learned scientists and learned scholars can examine the atomic constitution of the material world or even the planets, but still they are unable to calculate your energy and potency, although you are present before them. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, is not only unborn but also avyaya, inexhaustible, जो खत्म एनर्जी can neither be created nor be destroyed. तो वो कभी खत्म ही नहीं होते, हमेशा रहते हैं. ये सेम चीज़ शिव के बारे में भी बोला जाता है. His eternal form of bliss and knowledge and his energies are all inexhaustible.
ठीक है। यहाँ पे जैसे शिव को नीचे बोला जा रहा है, लेकिन जनरली त्रिदेव बोला जाता है, तो उसमें शिव, विष्णु और ब्रह्म को इक्विवेलेंट बोला जाता है। सो देयर आर डिफरेंट थॉट्स। आपको जैसा फीलिंग आती है उस हिसाब से कनेक्ट कीजिए। जैसे मैंने बिना विश्वास के भी कनेक्ट किया, तब भी मुझे उनकी मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करने की मिला, मैंने पिछले श्लोक्स में बोला है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कीजिए। यहाँ पे हम भगवत गीता को डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कृष्ण के बारे में ही है। ये हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का होली बुक है, तो इसमें ऑब्वियसली कृष्ण को ही यहाँ पे हमने मेन फोकस में रखा है। बाकी आपको जैसी कंफर्टेबल फील होता है उस हिसाब से आप ईश्वर के साथ में कनेक्ट कीजिए, भक्ति कीजिए, लेकिन ज़रूर डिवोशनल सर्विस में खुद को डालिए। सुपर एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी को जिस तरीके से आप समझ पाए, वो तो कण कण में है ना, जिस तरीके से आप समझ पाए उस तरीके से आप कनेक्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको कृष्ण के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में ही करना है। जिस रूप से आप कनेक्ट कर सकते हो उसी रूप से कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।